Hope the screen is visible to all of you, both of you. If the screen is visible, kindly raise your hand. Okay. So, moving towards the topic. So, you see, in previous class, we have started Z transform. That is, what is Z transform? Why it is used? Where it has to be used? And how it will be used. Now, in the Z transform, we have seen there is a domain or there is a range of Z transform. That is, under that domain, the Z transform is converged. Okay, and outside the range, the Z trans we will not get any value of Z. So this is all about Z transform and ROC. So now since we are going to learn a new procedure, okay, or we are going to learn a new method to transform a signal from one platform or one field to other field. So we have to know about some properties of the transform. ठीक है? That Z transform will show some properties. So that properties will make the Z transform a powerful tool, because in the definition, in the previous class, I have already given a definition, that is Z transform is a powerful tool, mathematical tool. So to make Z transform a powerful tool, we have to satisfy some properties which is totally strictly applicable for Z transform. If the signal will show that properties, or if the signal will follow that properties, then only we can say yes, that signal can be transformed through Z transform. And after transform, that signal will show that properties. Like suppose we all are doing our plus 2, or some students were doing their diploma course. So BTech course is the transformation from one field to another field, and now BTech course has some properties, that is, after passing out BTech, after passing out the graduation, the BTech students show some different properties from other graduates. So that's the BTech course, or that transform, that graduation program will show you some strong properties which is totally different from other graduate students. Similarly, same thing happened to Z transform. Z transform, after Z transform, so the signals which are Z transform will show some different properties. Now today we will discuss about few of the properties. Okay, so first properties is, that is, topic is properties of Z transform. Okay. The first property is linearity. Linearity property. The all signals which are Z transform must show the linearity property. So let it, there are two signals, that is x1n and x2n, and its Z transform is x of z, x1z, and its Z transform is x2z. Okay, so if I will write this, x1z equal to Z transform of x1n, and x2z is the Z transform of x2n. Okay, so this is the formation. Now according to the linearity, लिनियरिटी में Z ट्रांसफॉर्म का कंडीशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी दैट x1n प्लस x2n एक कोफिशिएंट रहेगा, इन दोनों का Z ट्रांसफॉर्म जो होगा दैट विल बी x1z प्लस b
plus b x to z. Okay, a is the coefficient, that is x1 n को हम अगर एक सिस्टम में से गुजारे एंड सिस्टम का कुछ कोएफिशिएंट फैक्टर ऐड होगा, दैट इज इट विल गिव यू x1n. ठीक है, एंड x2n को अगर हम कोई एक सिस्टम में डालें तो कोएफिशिएंट वैल्यू जो होगा दैट इज b ऑफ x2n. सो नाउ दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव टू प्रूव. ठीक है, ये लॉ नहीं है कि जो है वही होगा. ठीक है, वी हैव टू प्रूव. दिस इज द प्रॉपर्टीज वी हैव टू प्रूव. So suppose our two signals, that is x1n and x2n, इन दोनों को हम अलग अलग सिस्टम के थ्रू पास करेंगे. तो इट विल गिव यू a x1n एंड इसको अगर हम अलग एक सिस्टम के थ्रू पास करेंगे इट विल गिव b x2n. ओके, नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आया, x1n प्लस b x2n. नाउ इसको हम क्या करेंगे, z ट्रांसफॉर्म करेंगे. नाउ ये एक सिग्नल बन गया है. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब z ट्रांसफॉर्म करेंगे. z ट्रांसफॉर्म, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a x1n प्लस b x2n. इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द z ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला x of z equal to n minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. ठीक है, now put that formula in this equation. So in this equation now it will becomes, that is x of z equal to summation माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. एक्स ऑफ एन क्या होगा यहाँ पे, एंटायर ये जो सिग्नल है दैट इज एक्स ऑफ एन, ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन. नाउ इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a x1 n z to the power minus n plus b x2n z to the power minus n. दोनों अलग कर देते हैं हम. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a x1n z to the power minus n, ये अलग गया एक, प्लस just a minute. No audio. What is this? No audio. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now n equal to minus infinity to plus infinity bx to n z to the power minus n, z to the power minus n. ओके, ये मेरा हो गया राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये. तो kindly mute yourself. Kindly mute yourself. Okay. So z transform of a x1n plus b x2n will give us the result summation of n equal to minus infinity to plus infinity
a of x1n z inverse n plus n equal to minus infinity to plus infinity a sorry b x2n z टू द पावर माइनस n। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मुझे क्या करना है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है, आई हैव टू इक्वेट दिस विथ दिस वन, इक्वेट दिस विथ दिस वन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, नाउ मुझे अब राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। सपोज दोनों अलग इंडिविजुअल सिस्टम है, इंडिविजुअल सिस्टम है, सेकेंड केस दोनों इंडिविजुअल सिस्टम है, x1n एंड x2n। इसको हम पास करा रहे हैं सिस्टम कोएफिशिएंट a, सो a x1n, इसको हम पास करा रहे हैं कोएफिशिएंट b, सो b x2n। नाउ इसको हम क्या कर रहे हैं, z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बनेगा क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a x1n, और यहां पे इसको z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ b x2n। okay, so now we can write z of xn can be written as x of z। ठीक है, then x of z is equal to n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n, ये होगा। so now we have to put the values। ठीक है, we have to put the values, then इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। पहले इसको निकालते हैं क्या क्या आ रहा है। so z transform of a x1n can be written as a कांस्टेंट वैल्यू है जिसका n के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, तो a will be outside and x1z। similarly z transform of bx2n, यहां पे देखो b कांस्टेंट है जिसका ना n के साथ कोई रिलेशन है ना x रिलेटेड कोई यहाँ पे टर्मोलॉजी है, तो ये b कांस्टेंट टर्म को निकालेंगे बाहर और x2z। नाउ ऐड दिस, so ax1z is simply n equal to minus infinity to plus infinity। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x1z का वैल्यू क्या है, x1n, that is x1n into z to the power minus n। ठीक है, वहीं पे अगर हम सिमिलरली bx2n ले तो क्या होगा, b will be constant and x2n। ठीक है, that is x2z। ठीक है, तो वहीं पे n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n z टू द पावर माइनस n। नाउ इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक एडर सर्किट के थ्रू पास करेंगे, तो ये क्या होगा, a इंटू n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1n z टू द पावर माइनस n प्लस b इंटू n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n z टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो यहां पे देखो राइट हैंड साइड में क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता, a दिस वन, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a x1z प्लस b x2z इक्वल टू a माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1n z टू द पावर माइनस n प्लस b इंटू n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n z टू द पावर माइनस n। नाउ समेशन के अंदर a को रख दो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a x1n z टू द पावर माइनस n प्लस n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी b x2n z टू द पावर माइनस n। ये हो गया मेरा RHS। सो देखो यहाँ पे RHS का जो इक्वेशन है
वो तुम्हारा LH के इक्वेशन से बराबर है. So I can write RHS equal to LHS. So LHS equal to RHS, which stands that Z transform of AX1n plus BX2n equal to AX1Z plus BX2Z. ठीक है, so that is proved. So whatever signal is going for Z transform, that signal must show linearity properties. ठीक है, ये proved. Now moving to the, अभी तक सबको समझ में आया? Any doubts? सबको समझ में आया? If yes, raise your hand. एक दो, बाकी को तीन, बाकी अंकिता, दीपक, केतन, तुम लोगों को समझ में आया? If yes, raise your hands. If yes, raise your hands. Angita, are you able to hear my voice? Just a minute. There's a problem regarding Ankita. She is not able to hear my audio. Okay. So moving to the next. That is next property. Just a minute. There's a problem regarding sounds and on video. Okay, I am doing one thing. I am just disconnecting the class, rejoin it. You don't leave the class, okay? I am just exiting. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Is the screen is visible to everyone? Is the screen is visible to everyone? Yes, sir, visible. Okay. Okay. Linearity property. Next is second one is time shifting property. Time shifting property.
So whatever the signal is coming from Z transform, the signal must follow the time shifting property. ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग सिंस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे काम कर रहे हैं, डोमेन. So this time shifting will be termed as ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम मेरा जितना जो डोमेन है वो मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, टाइम डोमेन नहीं है. अगर टाइम डोमेन ही नहीं है तो वहां पे हम शिफ्ट करेंगे तो वहां पे कुछ होगा नहीं, उसको हम टाइम ला ही नहीं सकते, वो टाइम स्केल में शिफ्ट हो ही नहीं सकता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी. सो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट इज if x of z is the z transform of x of n, ठीक है, then z transform of x of n minus m, ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है, इक्वल टू z टू द पावर माइनस m x of z. ये ध्यान से रखना, ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी तुम्हें कैलकुलेशन में हर टाइम याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा ये है मतलब प्रॉपर्टी है. दैट इज अगर हम कोई सिग्नल को एम यूनिट डिले करते हैं तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म, जेड का कोएफिशिएंट भी माइनस एम आ जाएगा, जेड टू द पावर माइनस एम आएगा. ठीक है, सो नाउ प्रूव दिस. आई विल गो फॉर प्रूफ, दैट इज प्रूफ. ठीक है, तो देखते हैं. मेरा यहाँ पे इनपुट सिग्नल पहले क्या था, x ऑफ n था, फर्स्ट इन. नाउ शिफ्टेड इनपुट क्या हो गया, x ऑफ n माइनस m, वेयर इनपुट इज शिफ्टेड बाय m यूनिट. शिफ्टेड बाय m यूनिट. सो नाउ अब हम देखेंगे इस x ऑफ n माइनस m का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म क्या होगा. ठीक है, वो देखेंगे. सो नाउ डू दिस सॉल्यूशन. सो सपोज दिस इज योर इनपुट सिग्नल, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज एक z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n माइनस m. सो नाउ न्यू, पहला इनपुट क्या था, ये था. नाउ न्यू इनपुट हो गया n x ऑफ n x डैश n, दैट इज x ऑफ n माइनस m. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट z ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश, और इट कैन बी रिटन एज x डैश शिफ्ट. ठीक है, सो नाउ वी नो x of z equal to n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. ठीक है, तो यहां पे देखो n के बदले क्या हो रहा है, n माइनस m. ठीक है, तो नाउ वी विल सॉल्व इट. सो x डैश z क्या होगा, x डैश z इक्वल टू n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n था x z के लिए, x डैश z के लिए x डैश n होगा इनटू z टू द पावर माइनस n. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x डैश n. यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, x डैश n, दैट इज इक्वल टू दिस. सो पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n माइनस n z टू द पावर माइनस n. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सर यहाँ पे z टू द पावर माइनस n क्यों लिया गया है. ठीक है, सो z टू द पावर माइनस n. ठीक है, सो हम लोग z टू द पावर n, देखो n शिफ्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, ये n का वैल्यू n इक्वल टू n माइनस n नहीं है, x ऑफ n का वैल्यू है x ऑफ n माइनस n. स्केलिंग सेम है
बट उसको डिले कर रहे हैं n प्लस m, सो सिर्फ x ऑफ n में ही चेंजेस आएगा, z ऑफ z टू द पावर माइनस n में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि x ऑफ n माइनस m दैट मीन्स हम सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं, नॉट द स्केल। ठीक है, और z टू द पावर माइनस n, n जो है दैट इज द स्केल, उसको हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सो नेवर राइट x z टू द पावर माइनस n माइनस m। ठीक है, माइनस n माइनस m अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, टोटल स्केल को हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक नया स्केल बना रहे हैं। यहाँ पे ये 0 था, इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मतलब माइनस n माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 2, ये 0th पोजीशन में माइनस 2 पोजीशन होगा दो स्केल का, बट ये नहीं हो रहा है मेरा। यहाँ पे सेकंड सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल अगर सपोज ये रहा, फर्स्ट सिग्नल अगर ये रहा, तो सेकंड सिग्नल में क्या हो रहा है, न्यू सिग्नल में मेरा 0th पोजीशन सेम है, 0th पोजीशन का वैल्यू चेंज हो रहा है, मेरा पोजीशन चेंज नहीं, मेरा पोजीशन मतलब स्केल चेंज नहीं हो रहा है, मेरा उस पोजीशन में, उस स्केल में उस पोजीशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू चेंज z टू द पावर माइनस n। ठीक है, उसको सेम रख रहे हैं। नाउ इसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n माइनस m, z को हम लिख सकते हैं प्लस m माइनस m, ये लिख सकते हैं, यस और नो? कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? Can I write this? देख लो पहले, ठीक से देख लो इक्वेशन को। कैन आई राइट दिस? इफ यस रेज योर हैंड। हाँ बोलो। So z का पावर n माइनस m ही होना चाहिए बस। n माइनस m, देखो मैं वही चीज तुम लोग को अभी हाईलाइट दिखा रहा हूँ, कि मैं वही चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर हम z टू दी पावर, यहाँ पे स्केल क्या है, x ऑफ n था पहला, मेरा जो पहला इनपुट था, गॉट इट, मतलब मेरा x ऑफ n, सपोज x ऑफ n का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो 0th पोजीशन में मेरा 1, ओके, सो 0th पोजीशन में मेरा 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सिग्नल। नाउ इसी को अगर हम डिले कर रहे हैं, सपोज 1 यूनिट डिले कर रहे हैं, x ऑफ n माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये जो पुराना नया स्केल बना, इसका 0th पोजीशन और इसका 0th पोजीशन सेम रहेगा। सेम स्केल में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिले कर रहे हैं, दैट इज 1, दैट मीन्स इट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, सॉरी ये 0 में 0 रहेगा, 1 यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये डिले हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्केल, देखो 0th पोजीशन में ही था, स्केल हम लोग चेंज नहीं कर रहे, स्केल सेम रह रहा है, स्केल का पर्टिकुलर पोजीशन में हम वैल्यू को डिले कर रहे हैं या एडवांस करेंगे। ठीक है, सो सिमिलरली z टू द पावर माइनस n जो है, ये n का पोजीशन है, दैट n इंडिकेट्स द पोजीशन, n का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिग्नल n माइनस 1 में जा रहा है। सो यहाँ पे देखो n माइनस m, यहाँ पे मेरा सिग्नल डिले हो रहा है, बट मेरा z ट्रांसफॉर्म जो n का पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल का अगर ये पोजीशन चेंज होता, अगर सपोज पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसको चेंज करते, अदरवाइज जैसे x ऑफ n दिया गया, नाउ ट्रांसफॉर्म इट टू द x ऑफ 2n, नाउ पोजीशन चेंज हो रहा है, ये 0 था और ये 0, ये 1 होगा तो यहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 2 3,
तो देखो सिग्नल का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1, इसी पोजीशन में नया सिग्नल का क्या होगा 2 रहेगा। तो ये हो गया पोजीशन, तब z⁴ 2n होता, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी स्केल चेंज हो रहा है। ठीक है, बट इन दैट केस आई एम जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सिग्नल बाय कीपिंग स्केल कांस्टेंट। समझ में आया आप? z⁻n क्या हुआ, क्यों हुआ, इंस्टेड ऑफ z⁻n-m? Yes, sir. ओके, सो नाउ यहां से हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एम एम कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां में देखो, यहां देखो n इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ n माइनस m z⁻m इंटू z⁻n-m लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पावर में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर में ऐड हो जाता है। तो नाउ यहां से हम z⁻m को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही n रिलेटेड कोई टर्म है, ना ही ये तुम्हारा या इस समेशन के वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा, तो ये z⁻m। सो नाउ n इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ n माइनस m z⁻n-m। सो ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन इज वेरी सिमिलर टू x ऑफ n z⁻n। n के बदले मेरा n-m बैठा है, और यहाँ पे n के बदले n-m बैठा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z⁻m इंटू x ऑफ z, सिंपली, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म में x के अंदर जो z रहेगा उसका वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। इस n के ऊपर भी नहीं डिपेंड कर रहा है, इस n के ऊपर भी नहीं डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट एवर द माइनस सेम अगर रहा, x का जो x के ब्रैकेट फंक्शन का जो वैल्यू रहा, वही अगर z के पावर में वैल्यू हुआ, तो उसको हम सिंपली x ऑफ z लिख देंगे। ठीक है, सो दैट इज द प्रूफ। और इसको अगर हम और भी इजी वे में करना चाहें, तो और भी इजी वे में क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n माइनस। और भी इजी वे में क्या होगा, लेट इट x ऑफ लेट इट बी n माइनस m इक्वल टू l। तो l अगर होगा तो देखो, l अगर होगा तो n माइनस m के बदले l बैठ जाएगा, z⁻n बैठ जाएगा। एंड n इज नॉट रिलेटेड टू, ये ब्रैकेट में जो z है इस ये l के साथ रिलेटेड है ही नहीं। तो व्हाटएवर अगर तुम्हारा x के फंक्शन का जो वैल्यू है, z का पावर का वैल्यू सेम होगा, तो उसका z ट्रांसफॉर्म उसको इंडिकेट करेगा। सो ये हो गया प्रूफ। और ये प्रूफ को ध्यान से देखना, ठीक है, इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जाके जितना भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ये प्रूफ इसको काम में लगाएंगे, डायरेक्टली इतना कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। प्रॉपर्टीज हमको पता है, डायरेक्ट हम लोग उतना कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, हम सीधा उसमें वैल्यू पुट करेंगे। नाउ ये तो हो गया शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन, ये हम डिले फंक्शन में किए हैं। नाउ तुम लोगों का काम क्या है, यहां से इस क्लास से तुम लोगों का असाइनमेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसलेशन, फाइंड आउट द ट्रांसलेशन property of Z transform for x of n plus k। ठीक है, ये फाइंड आउट करना। अगर n प्लस दैट इज एडवांस होता है तो क्या होगा, डिले हुआ तो हमको पता है, एडवांस हुआ तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडेज क्लास, that is third one, that is multiplication
by an exponential sequence. So let it, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ x of z इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n, then according to this property z of n x of n equal to that is the multiplication property कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है a टू द पावर n, ठीक है, व्हाट एवर द फैक्टर इज, यहाँ पे जितना जो भी हो इसका z ट्रांसफॉर्म में ये a टू द पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। नाउ ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x ऑफ n तुम्हारा सीक्वेंस था और एक तुम्हारा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस a टू द पावर n। तो अगर ये a टू द पावर m भी होता या a टू द पावर k भी होता तो ये बनता a टू द पावर -n x ऑफ n, दिस वन, ठीक है। नाउ हम देखेंगे ये कैसे प्रूफ होगा, ये भी z ट्रांसफॉर्म के सॉल्यूशन में मेरा काम आएगा। तो लेट इट बी x ऑफ n, इसको हम पास कर रहे हैं सिस्टम में से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज a ऑफ n x ऑफ n, ठीक है। सो नाउ इसको हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे, z ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो z ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर n x ऑफ n, ये आ जाएगा लाइक दिस, ओके। नाउ वी विल गो फॉर z ट्रांसफॉर्म। सो ये हो गया, ठीक है। सो नाउ x ऑफ, और सिंपली z ऑफ a टू द पावर n z टू द पावर z टू द पावर n x ऑफ n, इसका फॉर्मूला पुट क्या होगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, z के बाद जो भी है डायरेक्ट उसको यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज a टू द पावर n x ऑफ n, ये हो गया इंटू z टू द पावर माइनस n। नाउ सॉल्व दिस, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x ऑफ n को बाहर निकालो, z ऑफ माइनस n इंटू a ऑफ n लिख सकते हैं। नाउ इसको रीअरेंज करो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x ऑफ n a टू द पावर -1 इंटू z टू द पावर n, ठीक है। कैन आई राइट दिस, कैन आई राइट दिस, Yes, sir. ओके। सो नाउ अगर हम z ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे, x ऑफ z इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n, ठीक है। ये क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, z के बाद ब्रैकेट में जो रहता है क्वांटिटी उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं, और ये सॉल्यूशन में देखो -1 z दैट इज डिपेंडेंट ऑन z, z के साथ जो डिपेंडेंट है उसको डायरेक्टली हम आउटपुट में पुट करते हैं। अगर यहाँ पे z इनवर्स है तो उसको हम x ऑफ z लिखते हैं, अगर a इंटू z इनवर्स है तो उसको हम लिखेंगे x ऑफ a z, अगर b इंटू z इनवर्स है उसको लिखेंगे b ऑफ, सॉरी ठीक है, b ऑफ z। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 है ये, तो दैट्स व्हाई 1 इंटू z, a इंटू z, b इंटू z। सो अगर यहाँ पे क्या है, a टू द पावर -1 इंटू z, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर -1 z, ठीक है। तो देखो नाउ मेरा इक्वेशन क्या आ गया, z, ये इक्वेशन आई कैन राइट x ऑफ, इस पोर्शन को हम x ऑफ के यहां पे लिखेंगे, दैट इज a टू द पावर -1 z। सो दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज
z a to the power n x of n equal to x of a to the power minus z। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू इज, अगर ये 3 हुआ तो यहाँ पे अगर 3 में आ चुका है z का 3 तो वो वहां पे जाएगा। ठीक है, दैट इज डिपेंड ऑन योर सोल्यूशन, दैट इज डिपेंड अपॉन योर इक्वेशन। सो दैट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिंस अभी भी सिंस 12:05 से 1:05, ठीक है, अभी और 5 मिनट दो ले लूंगा मैं तुम लोगों से, तो उससे मैं और एक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। दैट इज ये प्रूव्ड हो गया। हर एक प्रॉपर्टी को एक काम करना, एक कॉपी में सिर्फ प्रॉपर्टीज को लिखना, प्रॉपर्टी का नाम मत लिखना, प्रॉपर्टीज से जो प्रूव्ड हो रहा है ये इक्वेशन को लिख के रखना। कभी भी मेरा जेड ट्रांसफॉर्म का कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल और इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो वी विल यूज इनवर्स, सॉरी we will use inverse property because ये frequency scale में है। so now ये property क्या डिसाइड कर रहा है, ये according to this property, if x of z equal to z transform of x of n, then according to this property z transform of x of minus n, रिवर्स कर रहे हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, और इसको तुम कह सकते हो रिवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, x ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे x ऑफ z था, ये भी इनवर्स हो जाएगा। अगर रिवर्स है तो z ट्रांसफॉर्म है वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बिकम्स इनवर्स, रिवर्स है रिवर्स बिकम्स इनवर्स। ठीक है, सो नाउ इसको हम प्रूव करेंगे, आई विल प्रूव इट। सो प्रूफ, कैसे प्रूव करें, लेट इट x ऑफ n इज द सिस्टम, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स, तो ये हो जा रहा है x ऑफ माइनस n। नाउ इसको हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे, z ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ माइनस n। ठीक है, सो नाउ z transform of x of minus n equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो भी है उसको डायरेक्टली पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x of minus n z to the power minus n। ठीक है, सो नाउ लेट इट बी, क्या होगा, let it n equal to same thing होगा, let it minus n equal to k, so n equal to minus k। ठीक है, so now यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस के, सो n तुम्हारा माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये सस्टेन कर रहा था, तो माइनस के भी मतलब प्लस इंफिनिटी, टोटल माइनस के भी तुम्हारा प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। अब अगर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो अगर तुम्हारा लिमिट कुछ भी ले लो, n+1 n+2 माइनस n 1 माइनस n 0 माइनस n 1 प्लस n1 प्लस n2, वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो अगर ये लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली k विल आल्सो लाई फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नाउ x ऑफ k z टू द पावर k। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं,
k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये देखो z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि z का जो वैल्यू है, पावर है, वो माइनस में नहीं है, तो उसको हम माइनस में लेंगे। सो x ऑफ k z टू द पावर माइनस ऑफ z टू द पावर माइनस ऑफ माइनस k। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k z टू द पावर माइनस वन माइनस k। अब देखो z टू द पावर k हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये मेरा फॉर्मेट में आ चुका है, दैट इज x ऑफ n z टू द पावर माइनस n के फॉर्मेट में आ चुका है। और इसका वैल्यू क्या होता है, x ऑफ माइनस n के यहाँ पे जो z है वो टोटल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x ऑफ यहाँ का जो वैल्यू है ये टोटल इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा z टू द पावर माइनस वन। सो इट विल प्रूव द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, दैट इज यहाँ पे तुम्हारा रिवर्स हो रहा है। ठीक है, और z ट्रांसफॉर्म होते ही वो क्या हो जा रहा है, इनवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ओके, तो आज यहीं तक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट फ्रॉम योर एंड? इफ यू डोंट हैव डाउट, रेज योर हैंड एंड लीव द क्लास। इफ यू don't have doubts, raise your hand and leave the class. If you have no doubt, raise your hand and leave the class. Thank you, sir. Thank you. Okay. Vikas, have you any doubt? Vikas Hemra? Okay, Deepak Mandal, you can leave the class. Vikas Hemra, have you any doubt? Vikas? Have you any doubt? I think you are not attending the class. You are just switch on and join the class and then keep mute yourself. Keep mute yourself. Have you any doubt? Yes or no? Have you any doubt? Yes or no? Because okay. So I don't think your attendance will be considered because you don't give any kind of reply. So I will think that you just join the class, mute yourself, mute yourself, and as well as you have doing another work. Okay.